सर, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. P for positive and positive are holes also, and holes will be the majority charge carrier. So negative charge will be bound by the nucleus, that is negatively charged donor ions are fixed, whereas equal number of positively charged holes are free to conduct electricity. So this was p-type semiconductor. P-type semiconductor कैसे बनता है? When you mix impurities from which group? 13 group. Aluminium. Hmm? Hmm. And p-type में we have then n-type also. In n-type semiconductor, if you mix impurities from 15th group, then n-type is formed. In n-type, majority charge carriers are electron, n is negative. So positively charged ions are bound. They're not conducting. They're not moving. These are acceptor ions. उल्टा हो गया. एक्सेप्टर आयन तो ये होना चाहिए ना, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. 1 minute. These are acceptor ions. These are donor ions because they have donated electrons and become positively charged. उतने ही free electrons और conduction electrons are there. So these are free electrons. ये हमने लास्ट क्लास में किया. So p type semiconductor, majority charge carriers are holes, but electrically neutral हैं दोनों. ठीक है, both are electrically neutral. Both are इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जितने नंबर ऑफ आयंस हैं उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस भी है. पॉजिटिव आयंस here will be equal to number of negatively charged electrons. Negative ions will be equal to positive charge holes. So both are electrically neutral as such. दोनों न्यूट्रल है. This was done in the last class. Formation of PN junction. It could be a possible 3-mark question, that how a PN junction will be formed. Formation of PN junction. लिखो. When p-type crystal when p-type crystal and n-type crystal are fused together. When p-type crystal and n-type crystal are fused together, PN junction is formed.
PN junction is formed. There are various techniques to form a PN junction. There are various techniques to form a PN junction. तो वो डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है कैसे बनता है कॉमर्शियली, बट theoretically we should know how a PN junction will be formed. So we have one p-type crystal. So this is p-type and this is n-type. On the left, I'm drawing p-type crystal. On the right, it is n-type. P for positive. Positive is a hole. The hole free होगा p-type में. That means equal number of negative ions सर्कल में शो कर दो. पी टाइप का मतलब है you have positively charged holes which are majority charge carriers. तो होल्स फ्री हैं तो नेगेटिव चार्ज, तो होल्स को यू कैन शो इट लाइक दिस, इक्वल नंबर ऑफ होल्स. तो दिस इज पी टाइप क्रिस्टल. इधर क्या होगा? एन मतलब नेगेटिव. नेगेटिव मींस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर कंडक्टिंग, तो पॉजिटिव आयंस आर फिक्स्ड, so they are into circles. So these are holes. These are acceptor ions. These are donor ions because they have donated one electron and become positively charged. उतने ही conduction और free electrons you need to show. So equal number of free or conduction electrons. So these are conduction of free electrons. So one p-type crystal and another n-type crystal, they're fused together. This is how PN junction is formed. नहीं, अच्छा हाँ, लेकिन उधर पॉजिटिव आयंस हैं. पॉजिटिव आयंस में, पॉजिटिव होल्स में. अगर सर्कल के अंदर नहीं है तो वो होल्स हैं. दीज आर होल्स. दे आर मूविंग, मूवेबल चार्ज कैरियर्स. ये आयंस हैं, दीज आर नॉट होल्स. दे कांट मूव, देयर पोजीशन इज फिक्स्ड. दोस्त कहाँ है तुम्हारी आज? अच्छा अभी तो टाइम है. ऑलराइट, अब क्या होगा व्हेन वन पी क्रिस्टल एंड वन एन टाइप क्रिस्टल आर फ्यूज टुगेदर? तो एज यू लुक एट द जंक्शन, दिस इज जंक्शन है ना, जहां पे दोनों सरफेसेस मीट हो रही हैं. दिस इज अ जंक्शन. So electron will jump into the hole and neutralize this. ये हो जाएगा. So nearby the junction, electron will jump into the hole and neutralize. लिखो. Nearby the PN junction. Nearby PN junction, electrons from N side, electrons from N side will, electrons from N side will jump into the hole, jump into the hole of P side, of P side,
as a result, सर as एक a बार result, आपने electrons from n side, electrons from n side will jump into the holes in p side. इलेक्ट्रॉन्स तो एन साइड में है ना, तो वो होल्स में जंप हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, एंड दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो एज अ रिजल्ट के बाद एज अ रिजल्ट दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, तो अब उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया। अब क्या सिचुएशन होगी वो बनाते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर है ना? अब देखो क्या हो रहा है। दिस द जंक्शन, फ्राइडे को तुम्हारा टेस्ट है, कौन दे रहा है ऑनलाइन, कौन ऑफलाइन दे रहा है? आर अभी लाइट ऑनलाइन ऑफलाइन? सर टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग क्लास के बाद यू कैन राइट, और यू कैन कम ऑन सैटरडे ऑल्सो टू जस्ट टू राइट द टेस्ट। सर और फिर मैं सैटरडे आ जाऊँ? अदरवाइज ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी पॉसिबल है। I'll share the paper on parents group and then you can run online, वो भी पॉसिबल है। तो अब क्या हुआ, नियर बाय द जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैव न्यूट्रलाइज होल्स। अगस्त से व्हाट अबाउट यू? Sir, I'll also probably come on Saturday. If not Saturday, I'll come on Monday. तो सैटरडे को साउथ एक सेंटर में क्लास है। नहीं, सैटरडे संडे क्लास का है। सैटरडे क्लास है क्या? टाइम टेबल क्या है वहाँ का? सर 19th को तो नहीं है, 18th का याद नहीं मेरे को। हाँ सर तो देखो, को वो मैथ की लिख। क्लास नहीं है, उसकी जगह पर टेस्ट है हाँ और ऑनलाइन क्लास है। हाँ तो टेस्ट है ना, ड्राइंग हम्म। क्लास है देन टेस्ट है, तो उसमें दे देना, तुम सैटरडे को दे दो। मैथ की क्लास के टाइम पे टेस्ट है। हाँ तो बस उसी टाइम में फिजिक्स दे देना उसके बाद। अब यू कांट अवॉइड राइटिंग टेस्ट, अनन्या। टेस्ट अवॉइड किया इसका मतलब गड्ढे में गिरे। ओके सर। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, नियर बाय द जंक्शन दिस अ लेयर वेयर दिस नो फ्री चार्ज कैरियर। देखो यहाँ पे मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है, इन दोनों डॉटेड लाइन के बीच में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। जो चार्ज सर्कल के अंदर है वो आयन्स हैं, नेगेटिव आयन्स हैं, एक्सेप्टर आयन। और पॉजिटिव जो सर्कल में वो भी पॉजिटिव आयन है, डोनर आयन। दे आर नॉट फ्री चार्ज कैरियर्स, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब इस रीजन में, इस जोन में देर इज नो फ्री चार्ज कैरियर। इसको बोलते हैं डिप्लीशन जोन और डिप्लीशन लेयर। तो दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन जोन और डिप्लीशन लेयर। 1 मार्क का अलग से आ सकता है, व्हाट इज डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन जोन, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। सर हाँ एक बार आप वो पुराने जितने टेस्ट है उनकी पीडीएफ भेज दोगे ग्रुप पे। ठीक है। तो डिप्लीश मैग्नेटिज्म वाला टेस्ट भी नहीं मिला चेक होके। कौन सा? मैग्नेटिज्म वाला। क्या बात कर रहे हो? नहीं सर। तुमने तो दिया ही नहीं था टेस्ट। मैं तो यूनिट लास्ट टेस्ट, यूनिट टेस्ट हुआ है 4 चैप्टर का, वो सिर्फ एक स्टूडेंट ने दिया था, गरिमा और भव्या ने, और किसी ने नहीं दिया। मैंने बार बार तुम सर लोगों को बोला कि 4 चैप्टर का टेस्ट दो, किसी ने नहीं दिया। सर मैग्नेटिज्म का टेस्ट मैंने और शनाया ने मिड टर्म के पहले दिया था। अभी यू टोल्ड अस टू अटेम्प्ट ओनली द स्टफ व्हिच इज कमिंग इन आवर पेपर। नहीं नहीं, तो 4 चैप्टर का टेस्ट हुआ, लास्ट टेस्ट तो 4 चैप्टर वाला हुआ है, मैग्नेटिज्म का तो हुआ ही नहीं। इट वाज 4 चैप्टर टेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, नहीं नहीं सर, एंटायर फर्स्ट, एंटायर। एंटायर फर्स्ट बुक नहीं, एंटायर फर्स्ट बुक पहले चैप्टर 3 हुए थे, उसके बाद मैग्नेटिज्म के आगे वाले फोर्थ और
4 5 6 7 8 वाले हाँ, वो किसने दिया ही नहीं। मैंने तुम दिया था। तुमने दिया और गरिमा ने दिया है। इन लोगों ने तो मेरे को बोल बोल के थक गया। अगस्त से बोलता है कल दूंगा, परसों दूंगा, फिर एक दिन बाद दूंगा, बस टाइम निकल गया। शनाया ने तो आधा मैंने घंटे के लिए टेस्ट दिया कि मैं बात दोबारा आके दूंगी। चलो कोई नहीं, दोबारा से होंगे अब सारे टेस्ट। अभी तुम्हें वेव ऑप्टिक्स का देना है, फिर वापस से वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स कर लेंगे। रे ऑप्टिक्स के बाद सीक्वेंस चलती जाएगी। एक क्लास में टेस्ट दो, एक क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे, है ना। अब यही चलेगा, क्योंकि कोर्स खत्म हो जाएगा आज या कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे में। तो दिस इज द सिचुएशन। अब लिखो, एज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, as holes and electrons nearby the junction, nearby the junction neutralize each other, nearby the junction neutralize each other, a layer or zone, a layer or zone is formed, a layer or zone is formed where there is no free charge carrier, where there is no free charge carrier. देखो, पहले एक टेस्ट हुआ था 1 2 3, याद आ रहा है। सबने दिया था उसमें कुछ लोगों ने, अनन्या ने दिया, अस्मिन ने नहीं दिया, मनन्या ने दिया। उसके मार्क्स सबको मिल चुके थे। उसके बाद हुआ था 4 5 6 7 का, वो कहाँ दिया है। सर मैग्नेटिज्म का टेस्ट दिया था हमने। अरे 4 5 6 7 का नहीं दिया ना, मुझे मालूम है। तुम्हें बोला गया था मैंने कई बार, तुमने कहा कल मेरा मैथ्स है, फिर मेरा प्रैक्टिकल है, फिर मेरा वो है। अच्छा। याद करो सारी चीजें। सो मैंने क्या लिखवाया, अब उसको छोड़ो, ये जो लिखो, अब आगे वाले टेस्ट देना रेगुलर, ठीक है। यस सर। तो क्या लिखवाया मैंने, बताओ जल्दी से। हाँ, a layer is formed where there is no free charge carrier. This layer is called depletion layer or depletion zone. This layer is called depletion layer or depletion zone. तो डिप्लीशन लेयर या जोन का डेफिनेशन अलग से भी 1 मार्क का आ सकता है। अब मैं तुम्हें सीक्वेंस बता रहा हूँ ना, वेव ऑप्टिक्स के बाद रे ऑप्टिक्स का टेस्ट होगा, फिर डुअल एन एटम कंबाइन कर लेंगे, डुअल एटम एंड आई थिंक सेमीकंडक्टर भी कंबाइन करो, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। इसका मैं 2 घंटे का यूनिट टेस्ट ले लूंगा, 2 आवर्स का, ठीक है। दिस इज 1 आवर, दिस इज 1 आवर, दिस इज 2 आवर, एंड देन अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, ऐसे टेस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद इन बिटवीन आई कंडक्ट 1 MCQ टेस्ट इन द बुक 1। बुक 1 पे पूरा फर्स्ट 7 चैप्टर का MCQ हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI AC, ठीक है। एंड फिर सेकंड बुक पे कर लेंगे MCQ, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे। सो दिस अ डिप्लीशन लेयर एंड डिप्लीशन जोन, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज देखो, पी टाइप जो क्रिस्टल है, उस साइड में मेरे को बताओ, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर तुम्हें कौन सा चार्ज ज्यादा नजर आ रहा है। ऑन द पी टाइप, पी साइड ऑफ द क्रिस्टल, विच चार्ज इज मोर, आर दे इक्वल और व्हाट। पी साइड में पॉजिटिव ज्यादा है, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6। और नेगेटिव कितना है, 9। कौन सा बड़ा हुआ, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। सिमिलरली एन साइड में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन जोन और डिप्लीशन लेयर, वन साइड यू हैव negative charge, other side you have positive charge, मतलब this is separation of charges. So when there is separation of charges, तो क्या होगा, separation of charges होने से there will be potential difference created, because what is potential difference, potential difference is when there is separation of charges, एक साइड में पॉजिटिव accumulate हो गया, एक साइड में नेगेटिव accumulate हो गया। So p side becomes
at lower potential, negative potential, and positive side becomes at higher potential. And this is represented by an imaginary battery. एक इमेजिनरी बैटरी से मैं इसको शो कर रहा हूँ, डॉटेड बनाना है लाइन, ठीक है? एंड दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल. This is barrier potential. Due to the formation of depletion layer, P side is at lower potential, negative potential. N side is at higher potential or positive potential. And there's a potential difference between the two sides across the junction called barrier potential. इसकी definition लिखो. Barrier potential लिखो अब. Depletion zone, depletion layer, barrier potential अलग से 2 मार्क के definition में आ सकते हैं. Due to the form, आगे लिखो. Due to the formation of depletion layer or depletion zone, due to the formation of depletion layer or depletion zone, P side of the crystal, P side of the PN junction, ऐसे लिख लो. P side of the PN junction is at lower potential, or negative potential. P side of the PN junction is at lower potential, bracket में negative potential. Whereas N side of PN junction is at higher potential, bracket में positive potential. Is it higher potential or positive potential? Thus, a potential difference is created across the junction. Called barrier potential. क्या लिखा? Is created, potential difference is created across the junction, which is called barrier potential. For germanium, barrier potential is 0.3 volt. For germanium, barrier potential is 0.3 volt. And for silicon, it is 0.7 volt. Because commercially, silicon and germanium को ही सेमीकंडक्टर बनाने में यूज किया जाता है, पीएन जंक्शन. तो सिलिकॉन का कितना है? 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का 0.3 होता है. तुमने देखा भी होगा न्यूज में, न्यूज़पेपर में, सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स कितनी मारामारी चल रही है अभी. दैट इज ऑल दिस पीएन जंक्शन. अब बैरियर पोटेंशियल से क्या हो रहा है? ये भी तो हो सकता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं, इन होल्स को न्यूट्रलाइज कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा. दिस साइड इज एट लोअर पोटेंशियल, पी साइड इज नेगेटिव पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता, बिकॉज नेगेटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है. होल्स पॉजिटिव है, ये उस साइड में नहीं जाएंगे. ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल स्टॉप्स फर्दर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस. लिख लो आगे, लिखो. बैरियर पोटेंशियल स्टॉप्स फर्दर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस. Stops further Neutralization of electrons and holes. Further neutralization of holes and electrons. तो जब होल एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, तो मतलब 2 चार्ज कैरियर की डेथ हो गई, उसको बोलते हैं एनिलेशन. होल इलेक्ट्रॉन पेयर एनिहिलेशन, एनिलेट हो गए, खत्म हो गए.
और अगर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, सो दैट इज एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर इज क्रिएटेड. सो दिस इज द पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन डायोड भी इसको बोला जाता था. आज से 40 साल पहले जब पीएन जंक्शन नहीं थे, तो देर यूज टू बी कैथोड रे ट्यूब टाइप्स, इस तरह से डायोड हुआ करता. ये पीएन जंक्शन डायोड हुआ करता. दिस इज अ डायोड. अगर तुमने देखा होगा पुराने एंटीक जो रेडियो सेट्स होते हैं, बड़े बड़े रेडियो सेट्स हुआ करते थे, उनको तुमने स्विच ऑन किया तो 10 मिनट बाद वो स्टार्ट होते थे, बिकॉज ड्यूरिंग द 10 मिनट्स एंड दे विल गेट हीटेड अप एंड देन डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग. मतलब बल्ब की तरह एक डायोड हुआ करता था, पर उसको अब मिलीमीटर माइक्रोमीटर के साइज के डायोड ने रिप्लेस कर दिया. द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन इज दिस. दिस इज पी एंड दिस इज एन. हर बार इसको नहीं बनाएंगे, इसका सिंबल है ये. सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन इज दिस. ट्राइंगल वाला पी होता है एंड वर्टिकल लाइन इज एन. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन. 3 मार्क का आएगा. इसमें दोनों डायग्राम बनेंगे. डिप्लीशन जोन का डेफिनेशन, बैरियर पोटेंशियल का डेफिनेशन होगा. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर डोपिंग लेवल, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज अगर ज्यादा हमने मिक्स किए हैं, जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं उतना ही ज्यादा चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं. ये देखा था ना हमने. जितने हम ट्राइवेलेंट एटम मिक्स करेंगे उतने ही होल्स क्रिएट होते हैं. जितने हम पेंटावेलेंट एटम मिक्स करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं. तो सपोज डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ जाएंगे. My question for you is that if the doping concentration is higher, what will be the width of depletion layer? Will it decrease, increase, remain the same? बताओ. लिख लो question. If doping concentration is increased, what happens to the width of depletion layer? What width of depletion layer? Think and answer. तो अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे पी साइड में, है ना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे ऑन एन साइड में. सर डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होएगी। हाँ, डिक्रीज होगी. तो जब नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, उसको नजदीक में एक होल मिल जाएगा, उसमें जंप कर जाएगा. ठीक है. सो व्हेन द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज हायर, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनसाइड इट विल नॉट ट्रैवल लॉन्गर बट फाइंड a hole nearby. As a result, it will annihilate the hole or get neutralized. So the thickness of depletion layer will decrease. लिखो, when doping level or doping concentration is higher, when doping level or doping concentration is higher, electron from inside, electron from inside will not travel longer distance, but it will find hole, but it will find a hole nearby the junction and neutralize it, and neutralize it.
as a result, thickness of depletion layer will decrease. As a result, thickness of depletion zone or layer will decrease. अब बैरियर पोटेंशियल तो है ही, साथ में देयर इज अ थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑल्सो. तो जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल डिवाइड बाय द थिकनेस ऑफ depletion zone. VB by L would be electric field across the junction. तो अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, बिकॉज एल छोटा हो जाएगा ना. लेंथ, थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन जोन वुड बी लेस. एज अ रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड will also increase. So there's a very high electric field across the junction. So this is formation of PN junction. PN junction में दो टर्मिनल्स हैं, एक P से कनेक्टेड है. ये इसका सिंबल है, सिंबल याद करना है तुम्हें. दिस इज एन, दिस इज P. इसको जस्ट गो थ्रू कर लो, PN जंक्शन को याद हो जाएगा, 3 मार्क तुम्हारे पक्के हो जाएंगे. जस्ट गो थ्रू इट. डायग्राम क्या था, 2 डायग्राम क्या बनाए थे वो याद करो. Biasing. The process of applying potential difference across PN junctions called biasing. The process of applying potential difference across a PN junction is called biasing. Forward bias and reverse bias. Forward bias and reverse bias. वो सेमीकंडक्टर उसमें ट्रांजिस्टर में होता है. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है लिखो. इन फॉरवर्ड बायस P side of the crystal, P side of the PN junction लिख लो. P side of the PN junction is connected to P side of the PN junction is connected to higher potential. P side of the PN junction is connected to higher potential, and N side of the PN junction is connected to lower potential.
जैसे ये पी एन जंक्शन है, तो दिस इज पी एंड दिस इज एन। तो पॉजिटिव को अगर मैं पी से कनेक्ट किया, एन को नेगेटिव से, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। So in forward bias, P is connected to higher potential, N is connected to lower potential. रिवर्स बायस में लिखो, इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस P side of the PN junction, P side of the PN junction is connected to lower potential. P side of the PN junction is connected to lower potential, and N side of the PN junction is connected to higher potential. ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में पी क्रिस्टल को नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे, एंड नेगेटिव को हायर पोटेंशियल या पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे। There could be 1 mark MCQ, the last zero circuit diagram ask you forward या reverse है, क्वेश्चन कर लो। In each case tell me forward bias है reverse bias है। ये कितना दिया था मैंने, सी नहीं दिया। देखो, नहीं, दिस सिंबल फॉर अर्थिंग, अर्थ का मतलब है 0 वोल्ट, दिस इज अर्थिंग, अर्थिंग वुड इम्प्लाई 0 वोल्ट।
फर्स्ट क्या है, फॉरवर्ड है रिवर्स? फॉरवर्ड। ये -5 है, ये -10 है। अगर दोनों में +10 ऐड कर दूं, वो रिलेटिव होता है ना, -5 बड़ा है, -10 बड़ा है? -5 बड़ा है ना, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस हुआ फिर तो। अगर इफ आई ऐड सेम नंबर ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, हायर पोटेंशियल है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड बायस है। बी में क्या हो रहा है, 0। अब मैंने इसको रिवर्स कर, ये एन है, n -12 है, ये 0 वोल्ट है, तो ये भी फॉरवर्ड है। ये तो अंधा ही बता देगा फॉरवर्ड है। ये भी फॉरवर्ड है, रिवर्स मान लेते हैं चलो। ये 30 ऐड करो दोनों में, तो ये 10 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। हो गया, लिख लिया। अब हम करते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, या फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। When you apply forward bias to p-n junction, what happens? Let's discuss that. पूरा p-n जंक्शन बनाना पड़ेगा। p मतलब पॉजिटिव होल्स आर फ्री, मतलब नेगेटिव आयन आर बाउंड। n नेगेटिव, negatively charged electrons are free, so positive ions are bound. p-n जंक्शन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, तो तुम्हें डिप्लीशन जोन दिखाना होगा। दिस इज a depletion zone. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होल्स आर फ्री। यहाँ के चार्ज कैरियर्स न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। You can also draw imaginary battery, which is the barrier potential. Forward bias में P is connected to higher potential. This milliammeter, and this is variable voltage potential divider जिसको बोला जाता है. This is microammeter. So this is a circuit diagram for forward bias. पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है
हम बैटरी का वोल्टेज कम या ज्यादा कर सकते हैं. So we start with low voltage. So initially we see that there is no current in the micrometer because positive potential से क्या होगा? These holes will be pushed towards the PN junction. ये negative potential है तो negative potential से the electrons will be pushed towards the PN junction. So holes from P side and electron from the other side, they will try to cross the junction. But barrier potential बिल्कुल opposite है. देखो, barrier potential is trying to stop the flow of holes from P side and electrons from the N side. So barrier potential try to stop the flow of charge carriers across the junction. जबकि जो हमने पोटेंशियल डिवाइडर लगाया, पोटेंशियल अप्लाई किया है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, इसको यू कैन ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज. तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज क्या, उल्टा जस्ट रिवर्स कर रहा है. वो होल्स को पुश कर रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन. बट एज लॉन्ग एज अप्लाइड पोटेंशियल इज लेस देन दिस इज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज. यहाँ ले लेते हैं, आई यहाँ ले ले, करंट, फॉरवर्ड करंट इज इन मिली एम्पियर and this is forward bias voltage. So initially current will be very less because hardly any charge carrier would be able to cross the junction. But the moment potential difference applied is more than forward bias, the current will jump sharply at a particular point, and this voltage where the current increases sharply is called knee voltage. Knee voltage approximately barrier potential के बराबर होगा. Where the moment potential applied is more than the barrier potential, electrons and holes will cross the junction, and as a result, circuit will be completed and current will flow. Even though this current is not very high, it's in milliampere. So this is the forward bias characteristics. इसका डायग्राम बना लो, फिर इसकी स्टोरी लिखेंगे. फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स 3 मार्क का आ सकता है अलग से. दिस डायग्राम इन दिस स्टोरी. इस तरह से लिखो. इन forward bias of PN junction, P side of the crystal, P side of the PN junction, P side of the PN junction is connected with positive terminal of the battery, and N side of the crystal, N side of PN junction is connected with negative terminal of the battery. Negative terminal of the battery as shown in the diagram. As shown in the diagram.
there is a milliammeter. There is a milliammeter connected in series. There is a milliammeter connected in series with a battery. Hmm. Battery potential can be increased or decreased. Battery potential can be increased or decreased. तुमने सर्किट का डिस्क्रिप्शन कर दिया, आगे लिखो। इसमें की भी लगा देते हैं, ठीक है। प्लेस ए की ऑल्सो। देखो when key is pressed, when key is pressed, potential difference is set up across the PN junction. Potential difference is set up across the PN junction. P side at a higher potential, as लिखो, as P side is at higher potential, it pushes holes, it pushes the holes towards the PN junction. और सिंपली जंक्शन में लिख सकते हो, जहां पे पी क्रिस्टल एन क्रिस्टल मीट कर रहे हैं उसको जंक्शन बोला जाता है, पीएन जंक्शन और जंक्शन। तो पॉजिटिव पोटेंशियल ट्राई टू पुश पोल्स टुवर्ड्स द जंक्शन। आगे लिखो, सिमिलरली negative potential will push electrons, similarly negative potential will push electrons towards the junction, but barrier potential potential will oppose this. Barrier potential will oppose this. बैरियर पोटेंशियल क्यों अपोज करेगा? बिकॉज बैरियर पोटेंशियल बिल्कुल रिवर्स है। बैरियर पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल के उल्टा है। बैरियर पोटेंशियल होल्स को इधर नहीं जाने दे रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आने दे रहा है, बट जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया वो जैसे ऑपोजिट है, ठीक है। आगे लिखो, एट लो वैल्यू एट लो वैल्यूज ऑफ फॉरवर्ड बायस, at low values of forward bias, there will be very small forward bias current. There will be very small forward bias current, as very few holes and electrons will be able to cross the junction. We gradually increase the forward bias voltage. And at some value of forward bias voltage, we gradually increase the forward bias voltage, and at some value of forward bias voltage,
current increases sharply. Current increases sharply. Current increases sharply. This voltage is called knee voltage. This voltage is called knee voltage. Thus, during forward biasing, thus during forward biasing of PN junction, thus during forward biasing of PN junction, junction offers little resistance and allows current to pass through it. Little resistance and allows current to pass through it. तो कहने का मतलब ये हुआ फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन में करंट फ्लो करता है, हालांकि वो कंट्रोल करंट होता है, मिली एम्पियर में होता है. इट्स नॉट लाइक कंडक्टर इन विच करंट इज वेरी हाई. सो a PN junction allows current to pass through it during forward bias, even though that forward bias current is less. तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का किस्सा था. ये अलग से 3 मार्क का आ सकता है. एक्सप्लेन फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन. सो दिस सर्किट, दिस डायग्राम एंड एक और सर्किट बनाना है तो वो भी बना सकते हो. उसमें तुम्हें क्या करना है कि सिर्फ पीएन जंक्शन की जगह उसका सिंबल लगा देना है, तो वो भी कर सकते हैं. तो उसका ये फायदा होगा कि 3 डायग्राम देके एग्जामिनर खुश हो जाएगा. तुम्हारा वो राइटिंग में तुमने क्या लिखा है कहानी वो कोई नहीं पढ़ेगा फिर. तो ये सर्किट भी तुम बना सकते हो. इसकी जगह हमने इसका सिंबल लिख दिया पेन जंक्शन का. और मनन मार्क्स मिल गए. मनन सर वो उन्होंने आज दिए थे मार्क्स, बट मैं था नहीं स्कूल में. मैंने सर से बोला है, मैं ले लूंगा बाद में. अच्छा, पता नहीं मुझे अभी. मैं तो अमियन के लिए गया था सर. ओके. तो ये था फॉरवर्ड बायसिंग 3 मार्क का. सो गो थ्रू करो, पूरा याद हो जाएगा अभी. हो गया, याद कर लिया. अब हम करते हैं रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में पूरा उल्टा हो जाएगा सिस्टम, ठीक है. डायग्राम बनाओ. पीएन जंक्शन
This is P-type crystal. This is N. P means positive holes are free, मतलब negative ions are bound. And holes will be free to conduct. और डिप्लीशन जोन बना दो जहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है. N negative electrons are free, मतलब positive ions are bound. And there's a depletion zone दोनों साइड जंक्शन के जहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है. Imaginary battery. बैरियर पोटेंशियल इतना ड्रॉ कर लो. ये है पीएन जंक्शन. In reverse bias, P side of the crystal is connected to lower potential, negative potential. Micrometer and की लगा दो एक. तो रिवर्स लिखो. इन रिवर्स बायस डायग्राम बन गया. इन रिवर्स बायस P side of junction, P side of the junction is connected with lower or negative potential. P side of PN junction is connected with negative or lower potential. Whereas N side is connected with positive or higher potential. Positive or higher potential as shown in figure. As shown in the figure, there is a key. There is a key and a micrometer and a micrometer in series with the circuit. With the circuit. Potential applied can be decreased or increased with the help of potential divider. Potential difference applied can be increased or decreased with the help of potential divider. तो ये हो गया सर्किट का डिस्क्रिप्शन. अब देखो क्या हो रहा है.
This Sir, is the with the help of potential. डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर इस तरह से होता है, जैसे बैटरी है, तो एक टर्मिनल यहाँ पे, दूसरा इस तरह से होता है, इसको आगे पीछे स्लाइड करके हम पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी बनेगा ग्राफ, हाँ। पहले समझ लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, वो पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव पोटेंशियल, होल्स विल ट्राई टू मूव दिस साइड। बिकॉज ऑफ पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, these electrons will try to move that side. तो क्या होगा? एज a result, depletion zone will widen, और वाइड हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर विल वाइडन। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज बैरियर पोटेंशियल और जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, so they will not allow passage of electrons through the junction or passage of holes through the junction. So there will be hardly any current in the circuit, no current in the circuit. This is negative potential, उल्टा रिवर्स कर दिया। दिस इज करंट विच इज इन माइक्रोमीटर, माइक्रो एम्पियर। तो दिस इज हार्डली एनी करंट द सर्किट, ऑलमोस्ट ग्राफ को, पोटेंशियल वाले ग्राफ को टच कर रहा है। बट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? द पी एन जंक्शन विल बी हीटेड अप, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, होल पेयर का जनरेशन होगा, एंड अ फ्यू होल्स। अभी इस पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज के होल्स होते हैं, लेकिन मैंने बताया था कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इधर फ्री, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स विल एबल टू क्रॉस द जंक्शन। देखो, पी साइड क्रिस्टल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, पी साइड में, ये तुम्हें मालूम है ऑलरेडी। लेकिन इट ऐसा क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लिया 500 होल हैं, तो 300 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो सम इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो होल्स यहाँ पे क्या है? मेजॉरिटी चार्ज के, उनकी मेजॉरिटी ही ज़्यादा है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो आयन है। इलेक्ट्रॉन भी हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। सिमिलरली एन टाइप में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बट कुछ लेस नंबर में पॉजिटिव होल्स भी हैं। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाएगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ के होल थोड़ा इधर चले जाएंगे। सो जो माइल्ड करंट में नजर आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। द करंट विच इज वेरी वेरी स्मॉल इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा ड्यू टू हीट produced by the potential difference, the current will increase sharply, even though that current will be in microampere, and this voltage will be called breakdown voltage. कहने का मतलब पीएन जंक्शन फूक चुका है, अब बर्न हो गया, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। So we ensure that a PN junction is operated under breakdown voltage. And we see that in the reverse bias, there is hardly any current in the circuit. जो भी करंट सर्किट में हुआ है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो इन रिवर्स बायस, PN junction offers very high resistance to the flow of current, मतलब it behaves as insulator, it offers high resistance, so no current in the circuit during reverse bias. ग्राफ बना लो, अब इसकी स्टोरी लिख लेते हैं, ठीक है? रिवर्स बायस का 3 मार्क का आ सकता है, ये 5 मार्क का भी आ सकता है। फॉरवर्ड, एक्सप्लेन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस विद द ग्राफ, देयर विल बी 5 मार्क क्वेश्चन।
लिखो during reverse bias, lower potential to the p side, lower potential ब्रैकेट में लिख लो नेगेटिव पोटेंशियल during reverse bias, lower potential ब्रैकेट में रिवर्स नेगेटिव पोटेंशियल to the p side of p-n junction will attract holes away from the p-n junction, away from the p-n junction. मैं देखा होल्स इधर आ रहे थे. Similarly, higher potential ब्रैकेट में लिखो positive potential at n side of p-n junction will attract electrons away from the p-n junction. Electrons away from p-n junction. तो electrons we have seen moves away from the p-n junction. आगे लिखो. As a result, depletion zone widens. As a result, depletion zone widens and no majority charge carriers will be able to cross the junction. No majority charge carriers will be able to cross the junction. But very few electrons from p side, and holes from n side. ब्रैकेट में लिख लेना minority charge carriers. बिकॉज p साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और n साइड के होल्स हैं वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. will be able to cross junction. Therefore, there will be extremely small reverse bias current. There will be extremely small reverse bias current in microampere. Thus, reverse bias current in microampere. Thus, in reverse bias, p-n junction does not allow current to flow through it. p-n junction does not allow current to flow through it. Thus, in reverse bias, p-n junction does not allow current to pass through it, as it offers very high resistance. तो हमने ये देखा कि फॉरवर्ड बायस में जंक्शन कंडक्ट कर रहा है, रिवर्स बायस में जंक्शन कंडक्ट नहीं कर रहा, बट इट बिहेव्स लाइक ए वॉल्व. जैसे वॉल्व होता है ना, तुमने बायो में पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में. Valve allows flow of current only in one direction, flow of blood in only one direction. So p-n junction behaves like a valve. It allows current to flow only in forward bias, not in reverse bias. एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है. ये दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ p-n जंक्शन. कंडक्टर में तो करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. p-n जंक्शन में ऐसा नहीं होगा. आगे लिखो. If reverse potential is increased substantially, if reverse potential is increased substantially, more
electron hole pair are generated. Electron hole pair are generated and reverse bias current increases. This voltage is called breakdown voltage. This voltage is called breakdown voltage. A PN junction is always operated, आगे लिखो, a PN junction is always operated under breakdown voltage. तो अब reverse सर फिर bias से बोल दो पीएन जंक्शन is operated under breakdown voltage. मगर ब्रेकडाउन के तो फूक जाएगा ना, जल जाएगा. तो उसका एक और डायग्राम बना सकते हो सिंबल के फॉर्म में, वो ये है तुम्हारा. तो रिवर्स बायस में देयर इज नो करंट. तो ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस हो गया. तो जैसे वॉल्व होता है ना, जो कि फ्लो ऑफ वाटर एंड ब्लड अलाउज ओनली इन वन डायरेक्शन, से ये है, ये अटैच होता है. तो अगर ऐसे पानी फ्लो कर रहा है तो ये ऐसे खुल जाता है, तो अलाउज फ्लो. लेकिन अगर पानी का फ्लो ऐसे होगा, इट विल क्लोज. So it behaves like a valve. It will allow current to flow only in forward bias, but will not allow current to flow in reverse bias. तो ये पीएन जंक्शन में होता है. इसको गो थ्रू कर लो. आज जो किया सारा गो थ्रू करो. आज जो जो किया वो सारे 3 3 मार्कर्स वाले हैं. सबसे पहले हमने किया फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, 3 मार्क का आ सकता है. फिर फॉरवर्ड बायस 3 मार्क का, फिर रिवर्स बायस 3 मार्क का, या फिर फॉरवर्ड एंड रिवर्स 5 मार्क का भी आ सकता है अलॉन्ग विद द ग्राफ. फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट कर रहा है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं कर रहा है. तो अब पीएन जंक्शन बनाने का फायदा क्या हुआ हमें? पीएन जंक्शन का, क्योंकि जो भी काम इंसान करता है वो अपने फायदे के लिए तो करता है. तो हमने पीएन जंक्शन क्यों बनाया? तो उसका यूज ये है, ये रेक्टिफिकेशन में काम आता है. तुमने देखा हो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट एसी होती है. तो उसको पहले ट्रांसफॉर्म, तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है. ट्रांसफॉर्मर से हम क्या करते हैं, उसको 10 to 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, तुम्हारे चार्जर वगैरह, तो सारे डीसी पे वर्क करते हैं. दे डू नॉट वर्क ऑन एसी. तो अब इसको तुम्हें रेक्टिफाई करना, 12 वोल्ट एसी को 10 to 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेंगे. एंड दिस इज नथिंग बट रेक्टिफिकेशन. कन्वर्जन ऑफ एसी पावर इनटू डीसी पावर इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. लिख लो, कन्वर्जन ऑफ एसी पावर इनटू डीसी is called rectification.
And PN junction diode, PN junction is used in rectification, is used for rectification. So we have two types of rectifiers, half wave rectifier. पहले ट्रांजिस्टर वगैरह सब कुछ कोर्स में था, एम्पलीफायर भी था, ऑसिलेटर भी था, सब हट चुका है. फुल वेव रेक्टिफायर. So any one of the rectifier will be there in the exam for sure. 3 mark का. Either half wave rectifier or full wave rectifier. Now, what is half wave rectifier? This is core of transformer. इसका symbol है ये. This is the primary coil. It is connected to AC source, AC input जिसको मैं DC में convert करना है. This is secondary coil. This is primary of the transformer. यहाँ पे we place a PN junction, and here we get the output across a load resistance. बनाओ इतना. This is a circuit of half wave rectifier. PN junction को D से भी represent the diode. ठीक है. This is input AC, alternating current है ये, और voltage whatever. अब during the first half cycle ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. ठीक है. That means PN junction is forward bias because positive with P and negative with N. So during the first half cycle of input AC, it is forward bias. Junction is forward biased. तो forward bias अगर है तो क्या होगा? It will allow current to pass through it. So we'll get the positive output. हाँ, ये इनपुट है, आउटपुट है. तो during the first half cycle of input AC, it will be forward biased and it will allow current to flow through the load resistance. लेकिन एक सेकंड वही बना लेते हैं, सेकंड आउटपुट वाला. सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा? सेकंड हाफ साइकिल में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. सो दिस इज नाउ रिवर्स बायस. सो देयर विल बी नो करंट. So during the second half cycle, PN junction would be
reverse biased, and there'll be no output because reverse bias में there's no current. तो रिवर्स इस सेकेंड हाफ में हमें रेक्टिफाइड आउटपुट नहीं मिलेगा. यहाँ पे पॉजिटिव भी था, नेगेटिव था. सेकेंड हाफ में देयर बी जीरो करंट, लेकिन फिर अगेन पॉजिटिव हाफ फिर हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा. कहने का मतलब ओनली हाफ ऑफ द वेव इज रेक्टिफाइड. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. आउटपुट करंट जो हमें मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिल रहा है, वो ऑल्टरनेटिंग नहीं है अब. हालांकि वो फ्लक्चुएटिंग है. इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जीरो हो गया, फिर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो गया, फिर जीरो हो गया. So we'll get pulsating or fluctuating DC. We are getting pulsating or fluctuating DC. But it is direct voltage or direct current. So half wave rectifier से में हाफ वेव ही रेक्टिफाई हो पा रही है. पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव आउटपुट में जीरो करंट मिल रहा है. So only half of the wave is rectified. It's called half wave rectifier. So फ्राइडे क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर. फुल वेव रेक्टिफायर बचा है हमारा. और मेरे को तुम्हें थोड़ा सा और कुछ बताना, बस दैट्स इट. और फिर तुम टेस्ट दे देना. एंडिंग द क्लास. टेस्ट बाय का सर, मैं थैंक शेड्यूल यू. बना दिया है. वेव के बाद रेखा होगा, फिर एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर इकट्ठा होगा 2 आवर्स का. फिर विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. ठीक है. थैंक यू सर. ओके. बाय Thank सर. you, sir.